Uh, if you were to ask what is the most famous or known psalm, and it would be, I believe, Psalm 23 would be right there on the top. अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे जनप्रसिद्ध भजन संहिता कौन सा है, तो 23वां भजन लोग कहेंगे। And if you were to ask the second most, psalm that we recall and that we've read, at least in my childhood, that I recall is Psalm 103. अगर दूसरा कोई भजन है तो भजन संहिता 103 होगा। That's what we read this morning, and that's what we are going to look into for a brief time of meditation. और आज सुबह हमने यही भजन से पढ़ा, और आज कुछ समय के मनन के लिए हम लोग इस भजन से देखेंगे। Anyone remembers the last psalm that I preached from? किसी को याद है कि आखिरी बार मैंने किस भजन से प्रचार किया? Right. That's the theme today. Remember. और आज विषय वस्तु यही है कि हम याद रखें। Yesterday was Naveen's message. Birthday. कल नवीन भाई का बर्थडे था, And Stelcy dropped in a note and wishing him a birthday message yesterday in the pastoral group. और स्टेल्सी ने एक उनको संबोधित करते हुए एक मैसेज डाला। And she wrote amongst the wishes, thanking God for your ability to remember and to do many tasks together. और उसमें एक चीज़ जो उन्होंने बोला कि आप बाकी सारी चीज़ें हैं, मगर एक चीज़ जो आपको जो सराहने की योग्य है वो ये है कि आप चीज़ों को याद रखते हैं और याद करके आप उसको करते हैं, और लोग भूल भी जाए तो उनको भी याद दिलाते हैं। Yeah, exactly. And you also remind others to do the same. So that's a great quality about Naveen. और ये नवीन भाई का एक बहुत बड़ा एक गुण कहा है तो ये कहा जा सकता है। While we read the entire psalm this morning, I just want to largely focus on the first two verses, and it reads, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." वचन 103 उसकी पहली और दूसरी आयत पर हम ध्यान देंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। And last many psalm that we have thought and read about, और पिछले बाकी हफ्तों में जो हमने वचन संहिता से ध्यान और मनन किया, one of the common things that we always find in the Psalm of David is what? और अगर एक ऐसा विषय वस्तु जो हम लोग दाऊद के भजनों में पाते हैं वो क्या है? Usually there is the enemies that he deals with, or he is in a state of repentance or crying out. It is always that conversation with God that we see. और दाऊद के भजन में अगर आप ध्यान दें तो ऐसा होता है कि वहाँ पे शत्रुगण होते हैं, शत्रु से सता रहे होते हैं, वो सतावट से परेशान है, उस परेशान होने पे वो शत्रुओं को प्रार्थना करता है, उसमें पश्चाताप भी करता है, और इन बातों को, ऐसे विषय वस्तुओं को हम दाऊद के भजन में पाते हैं। But this psalm is different. What does it start with? मगर ये जो भजन संहिता जो है वो बिल्कुल ही अलग है। वो किससे शुरू होता है? Oh, here we see that he is talking to himself, and he is encouraging and he is talking to his heart. As we see, he is saying, "Oh my soul, do not forget. Oh my soul, remember." यहाँ पर वो परमेश्वर, बाकी भजनों में काफ़ी समय वो परमेश्वर याहवे से बात करता है, मगर 103 भजन जो है उसकी पहली आयत से ही भजनकार जो है वो अपने मन को संबोधित करके कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। Because David knows what you and me know about ourselves. और क्योंकि दाऊद जानता है जो हम अपने बारे में जानते हैं। The greatest problem that we as Christians see is not the issue that we don't have enough information about God. और समस्या ये नहीं कि हम मसीहों में कि हमें परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है या जानकारी की कमी है। But the problem is that we don't remember actively as much as we should about who this God is. मगर समस्या ये है कि हम लोग जिस प्रकार परमेश्वर को सक्रिय रूप से हमें याद करना चाहिए, हम वैसे याद नहीं करते हैं। And it is no coincidence but a divine institution of the Lord's Supper, as we see, and that we would partake in some time.
और ये बिल्कुल अचरज की बात नहीं है कि इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसको स्थापित किया है जिससे हम कुछ देर में भागीदार होंगे। And the core theme is to remember him because he knows very well that we will forget. और इस मेज का अगर एक प्रमुख विषय वस्तु ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इससे रोज हर बार भागीदार हो। क्यों? क्योंकि हमें भूलने की आदत है और हम ऊपर प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे याद किया करो। But largely the problem is that it's not that we forget all the time, it's that we forget all the good things and the truth that should speak to our hearts. और समस्या ये नहीं कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। समस्या ये है कि हमारे जीवन में जो भलाई होती है, जो अच्छाई है, उसको हम भूल जाते हैं और सच्चाई को हम अपने जीवन में भूल जाते हैं। So if you are a working professional, we all work in offices, at least most of us, or it can be any field, and you might be doing exceedingly well in your work. और अगर आप लोग कार्यरत होंगे, आप अपने दफ्तरों में कार्यरत होंगे और आप अपने काम में अच्छा कर रहे होंगे, And you are appreciated for the great work that you do. और आप जो कर रहे हैं उसके लिए लोग आपको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। And maybe in a conversation with your peers or with anybody, and somebody comments on your looks that you are not that great looking. और ये इन सब के बीच में जब आपको लोग सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, उसमें से एक बंदा आके कहता है कि ठीक है मगर दिखने में आप उतने अच्छे नहीं लगते हैं। Suddenly, every good thing that you could think about yourself vanishes, and that one thing sticks with you. आपने शायद वो सभा जो है आपको मान्यता देने के लिए, आपको सराहने के लिए रखा होगा, मगर एक व्यक्ति ने जो वो एक बात बोल दी, उस चक्कर में आप बाकी सब अच्छाई भूल जाएंगे। लोगों ने सब कुछ जो बोला भूलकर उस एक कथन पर आप अपना दिमाग और दिल लगा लेंगे। We are forgetful people, and we forget. It's not about in the sense of misplacing a key or something. और यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग भूल जाते हैं और कहीं भूल जाते हैं कि कहाँ क्या रखा है, But it is forgetting the very sense that truth slips from our hearts and it doesn't captivate us anymore. मगर भूलने का ये जो तरीका है वो बड़ा एक सूक्ष्म तरीका है। एक तरीका है, अगर याद देखा जाए तो हम लोग जो सच्चाई जो है वो हमारे मन से फिसल जाता है। So in Psalm 103, or at least in the first two verses, because on this hinges the entire psalm, the rest of the psalm actually. पहले दो आयतों के आधार पर ही बाकी भजन को लिखा गया है। And basically what David is teaching us is the way we should handle our life. और यहाँ पर दाऊद हमको क्या सिखा रहा है? वो एक तरीका सिखा रहा है जिस प्रकार हमें अपने जीवन को जीना है। And he gives us three things, and that's what we are going to look into this morning. तीन चीजों को वो हमारे सामने रखता है और आज वो हम देखना चाहते हैं। The first one is why we must remember. पहला कि हमें क्यों याद रखना है। Second is where we must remember. कहाँ हमें याद रखना है। And the third is what we must और तीसरा remember. हमें क्या याद रखना है। So the first one is why we must remember. पहला बिंदु जो दाऊद हमको इन आयतों से समझाता है कि हमें क्यों याद रखना है। David starts with saying, "Forget not all his benefits." और यहाँ पर वो कहता है कि हे मेरे मन, उसके उपकारों को भूल मत। Why does he say that? ये यहाँ पर दाऊद अपने मन को ये क्यों याद दिलाता है? Because forgetfulness is a heart issue. क्योंकि भूलना जो है वो एक हृदय का एक समस्या है। Now, in English, the word used is a very toned down or a tapered down word, that is remember. और यहाँ पर जो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया, हिंदी में भी शब्द जो इस्तेमाल किया है वो भूलना है, उसका इस्तेमाल किया है, या दाऊद या अंग्रेजी अनुवाद में इसका इस्तेमाल किया गया है। याद रख, remember. हाँ. But the way we understand the word remember is that it is about mentally recalling things. और अंग्रेजी में जो है वो याद रखना, उसको हम लोग जिस प्रकार याद करते हैं कि चीज़ों को हम अपने मन में वापस लाते हैं, उसको याद रखते हैं। That's what we usually use the word with, like did you remember to lock the house? और जैसे कोई बाहर निकल रहे तो हम लोग कहते हैं कि आपने याद रखा कि कमरा बंद करके निकलना है। I don't know about you, but I always, when I lock the house, I go down and sit in the car and I think, did I lock the house or not? आपके बारे में मुझे नहीं पता, मगर मेरे साथ यही होता है कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ,
गाड़ी में बैठता हूँ फिर याद आता है कि अरे क्या मैंने दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं। And things like, did you call your mom, and lot of different things that we are reminded of, or something that we try to remember. It is more like an actionable thing. और ऐसी चीज़ें जिस पर हमें कार्य करना है, वो सारी चीज़ें हमने अपने आप को याद दिलाते हैं। But in the scriptures, remembering is far more deeper. It is not just about trying to recall things. और यहाँ पर मगर बाइबल के हिसाब से अगर आप इस शब्द को देखेंगे तो उसका बहुत गहरा मतलब है। It means that we keep something very so central to our consciousness, and it is so vivid that it shapes our actions and our emotions. मगर यहाँ पर ये इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर ये जो मूल भाषा में उस शब्द का इस्तेमाल किया वो ये है कि ये सारी चीज़ उसके उपकार या कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन का केंद्र बिंदु हो तो आप उसको अपने जीवन से निकाल ही नहीं सकते हैं। It is so central to your consciousness that it is always there with you. और वो आपके विवेक में इतना केंद्र बिंदु बन चुका है कि आप उसको अपने मन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। And hence it should not be very surprising to all of us that the actions that we do is basically an outworking of what we remember. और इसलिए इस बात को हमें भूलना नहीं है कि जो हम लोग कार्य करते हैं, हमारे जो प्रतिक्रिया जो होती हैं वो उन चीज़ों से बनती हैं जो चीज़ हम याद रखते हैं। Now in Jeremiah 31 and verses 34, God says about he remembering the sins no more, that is of Israel. और यिर्मयाह की 31वीं अध्याय में परमेश्वर यहोवा उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को और याद नहीं रखूंगा। That doesn't mean that God suddenly had amnesia and he forgot about what Israel did. और यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो है वो उसको याद था और वो कुछ हुआ और वो सारी चीज़ें भूल गया। He doesn't say that, oh, you did something in 2002 but I remember it no more. और ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर कह रहा है कि 2002 में तुमने कुछ किया था मगर अब मुझे वो याद नहीं है। But what God is saying is that no, it means that I will not let your sins dictate the relationship or control the relationship with of the relationship that I have with you. यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह के अध्याय 31वें अध्याय में इस्राएलियों से ये बोल रहा है कि तुम्हारे पाप जो हैं उसके कारण उसके आधार पर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं कायम होगा। तुम्हारा पाप जो है उसके आधारित मेरा रिश्ता जो है उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिश्ता अलग है, मेरे प्रेम से उत्पन्न होता है। And while our problem is forgetfulness, we want to understand and we want to I want to say this, that it is not a mental issue but it is a spiritual issue. यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें याद नहीं रखते हैं, हम लोग चीज़ें भुला देते हैं, वो सिर्फ एक हृदय या अगर मानसिक एक समस्या नहीं है, वो एक आत्मिक समस्या है प्रिय जीजों। It is not a memory issue that we don't recall. ऐसा नहीं है कि हम लोग के दिमाग में एक बात याद नहीं, हम भूल जाते हैं, मगर हम लोग ये एक आत्मिक समस्या से हम और आप जूझ रहे हैं। We know the truths but it is not central to us. हम लोग सच्चाई को जानते जरूर हैं मगर वो हमारे लिए हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनता। As we grew up and if you look at the young children as they go into schools and colleges, और जब हम लोग बड़े हुए और आप अगर अभी के बच्चों को देख रहे हैं जो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, oh they are exposed to the word of God daily and they are assured from the scriptures that God says, fear not for I am with you. और इन लोग को जैसे भी माउंट कार्मेल भी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्रिश्चियन स्कूल में वो जाते हैं तो बार बार उनको ये याद दिलाया जाता है कि डरो मत, परमेश्वर मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। But it would take one Insta post or one group chat for you to be excluded and your entire identity is in question. आपको घर में भी ये याद दिलाया जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, स्कूलों में भी याद दिलाया जा रहा है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मगर बच्चों के साथ होता है कि एक छोटी सी घटना होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बुलाया नहीं या आपको कॉल नहीं किया गया या इंस्टा पोस्ट में आपका नाम आपको टैग नहीं किया, उसमें क्या होता है आप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आपकी को जो पहचान जो है आप सोचते हैं मेरा जीवन खत्म हो चुका है। The issue is not that they did not recall or their ability to recall the verse
that they read or that they know. ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं कि परमेश्वर उनके साथ है या परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है, ऐसा नहीं कि वो उसको वो याद नहीं रख पाए, But it is that it is not gripping them in that moment and they forget it in their मगर heart. हमारे बच्चों में ये जो सच्चाई जो है वो केंद्र बिंदु उनके जीवन का नहीं बनता है, उनके जीवन का विषय वस्तु परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का वचन नहीं बन पाता है। That is why remembering or active or intentional remembering is very vital. और इसलिए प्रिय चीजों, आत्मिकता में परमेश्वर की सच्चाइयों को याद रखना और उसको अपनी जीवन का केंद्र बनाना हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। Because what you remember controls you. क्योंकि इस बात को याद रखिए, जो भी आप याद रखते हैं उसके आधार पर आपकी प्रतिक्रियाएं बनती हैं। आप जो याद रखते हैं उसके आधार पर ही आप बातचीत करते हैं, आप कार्य करते हैं। Not digressing from the topic, but we did the Forgive series some time back. कुछ समय पहले हमने माफी पर एक श्रृंखला हमने शुरू करा था, And we saw that how central it was to forgiveness, how we understand forgiveness and why we struggle with it. और हमने उस श्रृंखला में इस बात को याद करने की कोशिश की या समझने की कोशिश करी कि मसीह जीवन में माफ करना कितना जरूरी होता है और वो कितना मध्य केंद्र बिंदु है एक मसीह जीवन का। And why do we struggle with it? और हम लोग इसमें संघर्ष क्यों करते हैं, हमें ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? Because what we remember controls us. क्योंकि हमें जो याद रहता है वो हमें नियंत्रित करता है। Because you and me both know that what hurts sticks with us. क्योंकि हमें और आपको याद है कि जिस चीज से हमें चोट लगी है वही चीज आप बार बार अपने मन में चलाते हैं और वो आपको नियंत्रित करता है। You know, what does Bible say about this? And we read this in many different passages, like Isaiah 51, wherein God is saying, you are afraid of men because you have forgotten God. और इसी बात को बाइबल बार बार याद दिलाती है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की सच्चाइयों को क्या कर चुके हो, भूल चुके हो, उसको तुमने अपने जीवन का केंद्र ही बनाया है। और 51 में वो कहता है, तुम मनुष्यों से डरते इसलिए हो क्योंकि तुम परमेश्वर को भूल चुके हो। 2 Peter 1 verses 8 to 11, he mentions about if you lack self-control, perseverance, kindness, it's because you have forgotten you were cleansed from the sins. दूसरा पत्रस उसकी पहले अध्याय 8 से 11 में पत्रस इस बात को लिखता है कि तुम्हारे जीवन में संयम की कमी इसलिए है, तुम्हारे जीवन में कोमलता और दीनता की कमी इसलिए है क्योंकि तुम क्या भूल गए हो, तुम ये भूल गए हो कि तुम खुद पाप से माफ किए हुए एक विश्वासी, एक व्यक्ति हो। When we look at Deuteronomy chapter 8, the entire chapter is dedicated to what? The theme is remembering your Lord. और व्यवस्था विवरण उसकी 8वीं अध्याय का विषय वस्तु ही ये है कि तुम्हें परमेश्वर को याद करना है। And it highlights one thing very prominently to the Israelites, that when life is going good, do not forget your God. और इस बात को वो वचन बार बार याद दिलाता है और बड़े स्पष्टता से याद दिलाता है कि जब तुम्हारा जीवन बेहतर होने लगे तो क्या करना, मत करना, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को मत भूलना। Repeatedly what the scripture is trying to remind us is that remembrance is not just merely a mental recall. और इस बाइबल जो है बार बार हमें ये बोलता है कि याद रखना जो है, जो हमें लगता है कि हमारी मानसिक क्षमता के आधार पर हम चीज़ों को याद रखते हैं, बाइबल क्या कहता है, वो सिर्फ हमारी मानसिक क्षमता पर आधारित नहीं है, वो हमारे आत्मिकता पे आधारित है कि हम परमेश्वर की बातों को कितना याद रखते हैं। Oh, absolutely. It is absolutely central to our consciousness because it is so vivid and it shapes our life and our actions. और ये हमारे विवेक के लिए बहुत ही जरूरी है, केंद्र ये है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन की जो तरीका है, दौर है, हमारा जो चलन है, वो सब कुछ बिगड़ जाएगा और परमेश्वर का वचन हमें निर्धारित नहीं करेगा, हमें नियंत्रित नहीं करेगा। So this is one of the other common phrases that we hear more often. और एक चीज और है जो हम लोग बार बार अपने पारिवारिक जीवन में, दिनचर्या में सुनते रहते हैं, especially with our kids.
हमारे बच्चों से हम ये सुनते रहते हैं, what? I will never do this again. और हम अपने बड़े बच्चे अगर उन्होंने कुछ गलत किया और उनको अगर हमने टोका तो वो फट से बोल देते हैं कि मैं अब एक और फिर से मैं कभी ये नहीं करूँगा या करूँगी। So some time back when we were in Chennai, whenever we used to go to supermarket, we knew that both the boys, especially Jay, is going to create a ruckus in terms of different things. So there would be an expectation setting that would happen before we go to the supermarket. और चेन्नई में जब हम थे तो हम सुपरमार्केट जाने से पहले हमें समझ में आता था कि जैसे ही सामान को देखेगा तो जे जो है उसको पीछे भागेगा, उसकी मांग करेगा, तो हम जे के साथ बैठकर पहले ही समझाते थे कि ऐसे मत करना, वहाँ पर जाना तो ध्यान से तुम चीज़ों को देखना। And he would absolutely nod in agreement. और वहाँ पर हमारी बात मानेगा, मगर नहीं, अच्छा वहाँ पे भी हमारी बात नहीं मानेगा। And then once you reach, he is a completely different person, and he is enamored by everything that he sees around. And the thing would be, this is the last time, I would not ask this ever again. और वहाँ पर देखकर वो चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित होता है और उसमें वो मांग करता है, उसके बाद कहेगा अब आगे से मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। Or it can be anything that is done wrong. It's not the fact that they forget that they have done wrong. ऐसे नहीं कि हमारे बच्चे भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। It is not that the memory faded that they did wrong. ऐसा नहीं कि उनकी याददाश्त चली गई है, But they forget the gravity or the seriousness or the emotional force or the immediacy or the hurtfulness basically has faded. And that is very true for us as adults as well. मगर वो इस जीवन, वो जो कार्य उन्होंने किया है, उस कार्य का परिणाम क्या हुआ, उससे क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें उत्पन्न हुई, उससे शायद लोगों को ठेस पहुंच सकता है, भावनात्मक रूप से लोग ठेस पहुंच सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक कार्य से। बच्चे वो भूल जाते हैं, मगर हम भी जो हैं, हम भी उसको भूल जाते हैं, वापस वही चीज़ करते हैं जो हमें मना किया गया है या हमको बोला गया, वचन हमें मना करता है, फिर भी हम जाकर वही चीज़ करते हैं। So the issue never is about that we don't know what we have done is wrong, but it stops to matter that much to us. और इसलिए प्रिय चीज़ों, हम ये नहीं बोल सकते कि अरे हमें पता नहीं था और इसलिए हम ये पाप कर बैठे, या हमें पता नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय चीज़ों, हमको परमेश्वर का वचन बड़े तरीके से पता है, अच्छे तरीके से हमें पता है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन और उसकी सच्चाई हमारे जीवन में केंद्र नहीं है, वो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है। Most of us sitting here are married couples. यहाँ पर हमसे जो अधिकतर बैठे हैं वो शादीशुदा हैं, And this scenario is not new to us either. और ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये भी हमारे लिए नया नहीं है। It is not believed, it is very true that more than your parents, your spouse has seen the best and the worst of you. और ये बात में कोई गलत बात नहीं है जब मैं ये बोलता हूँ कि आपके माता पिता से ज़्यादा आपने जिससे शादी किया हुआ है, आपकी जीवन साथी ने आपको सबसे करीब से जाना है, आपके सबसे अच्छे भाग को वो जानते हैं, चरित्र के सबसे अच्छे भाग को जानते हैं, और सबसे अभाग्य भाग जो है उसको भी वो अच्छे से जानते हैं। And hence you know the strongest point and the weakest point of your spouse. और इसलिए जीवन साथी एक दूसरे के सबसे कमज़ोर कड़ी को भी पहचानते हैं और सबसे सामर्थ्य या ताकतवर जो कड़ी जो है उसको भी वो समझते हैं। So when a husband wife fights, और इसलिए जब दंपति लड़ते हैं, you pick the weakest point of the other person, and in the heat of the moment you are going to say the most hurtful thing to the other person. आप क्या करते हैं, जैसे ही लड़ाई होती है आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, आप वो जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उस पर आप आक्रमण बोल देते हैं और ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि जो दूसरा जो व्यक्ति है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए, वो भावुक रूप से, भावनात्मक रूप से वो क्षतिग्रस्त हो जाए। And you and me both know that it is not random. We think very actively what to say. और हमको लगता है ऐसे हम लोग बोलते हैं, जब गुस्सा होते हैं हम लोग बोलते हैं अरे गुस्सा था इसलिए हमने बोल दिया, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। मगर प्रिय चीज़ों, ऐसा नहीं है। हम लोग जब गुस्से में भी बड़े सोच समझ कर अपने शब्दों को पिरोते हैं
और उस शब्दों को एकदम गोली के रूप में उसको सजा के रखते हैं, और जब जब लगना है, बोलना है, उसको दागना है, उसके हिसाब से हम दागते हैं। And at the same time, when you're thinking, there's this little voice in your heart which is telling you this is not right. You shouldn't say जितने भी it. आप गुस्सा हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका विवेक आपको ये बोल रहा है बड़े धीमे शब्द से कि ये जो बोलोगे उससे वापस आना बड़ा मुश्किल है, इसको मत बोलो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। फिर भी हम उसकी बात, हम अपनी विवेक को नहीं सुनते हैं। But we say it anyways because we are so bent on hurting the other person. हम लोग गुस्से में बोल जाते हैं, हमें जो बोलना है, परमेश्वर की सच्चाई, वचन सब मालूम होने के बाद भी हमने जो बोलना है वो हम बोलते हैं गुस्से में, क्योंकि हम उस गुस्से में हमने इस बात को तय कर लिया है कि मुझे उस दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचानी है, और उसके लिए मैं जो कुछ ही मेरे बस में आता है वो मैं करूंगा या करूंगी। It was never an aspect of that we didn't know. We very well knew what we are saying and what we meant. इस बात से आप अपने आप को आज स्पष्ट कर लीजिए, ऐसा कभी भी नहीं है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आप बोल के ये निकल जाएं कि अरे मैं गुस्सा था तो मैंने बोल दिया। नहीं, आप जब गुस्सा हैं तब भी आपको बड़े साफ तरीके से पता है आप क्या बोल रहे हैं और उसके बोलने का क्या मतलब है, उससे क्या प्रभाव हो सकता है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी आप वही चीज़ बोल रहे हैं जो आपको पता है कि गलत है। And this is true for every married couple here, including myself. और ये हम सब जो यहाँ पर शादीशुदा हैं, मुझे उसमें आप शामिल कर लीजिए, हम सब के लिए ये सच्चाई है। This disconnect is real and very discouraging. और ये जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार सच्चाई को जानने के बाद भी हम ऐसा चलन को चलते हैं, तो कितना भाग्य एक बात है ये। After some time we do recall and we may apologize to each other only to repeat it again sometime later. हम लोग कुछ समय बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, हमें कुछ चीज़ें याद आती है, परमेश्वर का वचन याद आता है, तो हम लोग चाय पे बैठते हैं या अलग से बैठकर बोलते हैं, माफ़ करना, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, ये करूँगी। Because उसके बाद एक हफ्ते बाद या शाम को ही वापस विस्फोट हो जाता है। the Bible is very clear and it repeatedly highlights this problem because our tendency or our sinful tendency is to let crucial truths lose their grip on us while negative, harmful memories remain very vivid in our minds and our hearts. प्रिय चीज़ों, बाइबल हमको ये बात बोलता है कि पाप के कारण हम जो मनुष्य जो है, हम अपने जीवन में परमेश्वर का जो वचन और उसकी जो सुंदरता और उसकी बात की जो केंद्रता को हम अपने जीवन में उसको भुला बैठते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रखते हैं। परंतु हम कौन सी चीज़ें याद रखते हैं? सारी नकारात्मक बातों को हम अपने मन में बड़े अच्छी तरह याद रखते हैं। किसने कब क्या बोला, कैसे बोला, किस तरीके से बोला, कब मुझे हानि हुई, कब मैं भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। इन सब चीज़ों को बाइबल कहता है कि हम नकारात्मक रूप में इन सारी चीज़ों को अपने मन में बनाए बैठे रहते हैं। And this imbalance is what Bible calls as sin. It's a dislocation of your heart or your memory. और इस चीज़ को बाइबल जो है इसको कहता है कि ये असंतुलित है, जहाँ पर पाप के कारण आप परमेश्वर की सच्चाई और भलाई को भुला बैठते हैं या याद नहीं करते हैं। और आप क्या करते हैं? आप अपनी जीवन की जितनी नकारात्मक बातों को याद कर उस पे समय व्यतीत करते हैं। Dear ones, this is a sin maybe that we have become so comfortable that now it doesn't really disturb us much. We think अरे ये तो चलता है, ये चीज़ें होती हैं. It doesn't really move us anymore. और ये असंतुलन इतना बिगड़ चुका है हमारे जीवन में कि हमने इसको अपने जीवन का एक दौर तरीका बना लिया है, सच्चाई बना ली है कि अब ऐसे ही हम बात करेंगे, हमारे जो मन में आएगा हम वही करेंगे। उसके अलावा परमेश्वर के वचन और उसके आधार पर जीना हमारे लिए मुश्किल है। In this sinful world and in the sinful flesh that we are, our memory or the good memories are broken. और इस पापी संसार में प्रिय अजीजों, ये संसार हम पर हावी रहता है और इसलिए अच्छी यादें जो हैं या परमेश्वर की बातों से तरफ से जो हमें मिली हैं
वो हम भूल जाते हैं या उसमें उसको याद करने में एक समय, एक लय हमारे जीवन में टूट जाता है। Have you seen this when if somebody tells you 100 times that you're very good, you're a kind person, you're a good person, it takes a lot of time for us to believe it. But if somebody comes and tells you that you are a very bad person, you will believe it right away. और कोई आपको बार बार बोले कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे अरे चलो ठीक, मजाक मत करिए, ऐसे बार बार आपको फिर भी वो बताएंगे नहीं नहीं आप बहुत बड़े दयालु व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। आपको उन पे विश्वास करने में थोड़ा समय लगेगा, मगर कोई आके आपको ये बोल दे कि आप बहुत ही बेकार आदमी हैं, आप माने ना माने मगर आपने उसको दिल में आप उसको तुरंत बैठा लेते हैं, वो आपके मन और दिल को दोनों नियंत्रित कर जाता है। A 10-year-old wound will continue to grip you, but God's yesterday's provision is never going to, be there in your heart. तो ये असंतुलन देखिए आपके जीवन में क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है। 10 साल पहले घटी कोई बात को आप अपने जीवन में आज भी लेकर बैठे हुए हैं, उसके कारण आप पूर्ण तरह नकारात्मक बन चुके हैं। मगर कल परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य जो किया है, उसको आप भुला बैठते हैं, उसको याद भी नहीं रखते हैं। 10 साल पहले की कोई घटना को लेकर आप थाम कर बैठे रहते हैं। What's going on? What is there in our hearts? The issue is that there is definitely something wrong with our hearts and with our minds. और इसलिए इस बात को ये सवाल पूछना है कि ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने जीवन में इतना नकारात्मक सोच को लेकर क्यों बैठे रहते हैं, जब परमेश्वर की सच्चाई हमको अपने हाथों में दी गई है, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में पूर्णता से हम लुप्त हुए हैं, फिर भी हम इस नकारात्मक जीवन को क्यों जीते हैं। वो कहीं ना कहीं वो सवाल आपको पूछना है कि मेरे दिल के साथ, मेरे मन के साथ गलत क्या है। One psychologist said something like this: our hearts are like sieves. Channi. The blessings of God pour in, but they leak out very quickly. एक मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार बोला कि हमारा जो मन जो है, जो हृदय जो है, वो छन्नी के समान है। परमेश्वर उसमें भलाई डालता जालता है और वो भलाई वैसे के वैसे दूसरे छेद से, उसे दूसरे छोर से बाहर निकल जाता है। Dr. Rick Hansen said something like this, that we have Teflon hearts for the good things, but Velcro hearts for the bad. और एक और व्यक्ति इस बात को कहता है कि टिप्पणी करते हुए कहता है कि अच्छे चीज़ों को हम अपने दिल को इतना कठोर बना लेते हैं कि अच्छी चीज़ें जितने भी हमारे दिल की तरफ आए उसको वो हमारे दिल को छूती नहीं है, वो हमारे दिल से लगकर निकल जाती हैं। मगर हमारा दिल दूसरी तरफ, वो कहता है हमारा जब बुराई के समय आता है तो हमारा वेलक्रो टाइप का दिल है। वेलक्रो देखा आपने, कहीं पे भी लग जाए वो चिपक जाता है, और वैसा हमारा दिल है। जैसे ही कोई बुराई, दूर से भी कोई बुराई चल के जा रही हो या किसी ने कुछ बोल दिया, उसको हम छीन के अपने दिल में चिपका लेंगे। Why must we remember all his benefits? तो इससे सवाल ये उठता है कि हमें उसके उपकारों को क्यों याद रखना चाहिए। Because if we don't, the wrong things are going to grip us. यहाँ पर दाऊद इस बात को कहता है कि अगर हम उसके उपकार को याद नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन में सारी नकारात्मक बातों को याद कर कर अपनी चाल को, अपने चलन को उस प्रकार चलेंगे। If we don't remember all his benefits, hurtful words will shape us more than God's promises. अगर हम उसकी भलाई को अपने जीवन में याद नहीं रखते प्रिय चीजों, उसकी सच्चाई को अपने जीवन में याद नहीं रखते हैं, तो हमारे जुबान से दर्द देने वाली, चोट पहुंचाने वाली बातें ही निकलेंगी, उसके अलावा हमारे जीवन से कोई बात नहीं निकलेगी। Fears of our life is going to become far more greater than his faithfulness. जब अगर हम उसके उपकार को याद नहीं रखेंगे, उसके वचन को याद नहीं रखेंगे, हमारे जीवन का जो भय है वो इतना महान पर्वत बन जाएगा कि हम उसकी भलाई को देख भी नहीं पाएंगे। And resentments are going to weigh heavier on your heart than his mercy. आप जिससे घृणा करते हैं, आपकी जो घृणा जो है वो उसकी दया से आप अपने जीवन में उस घृणा को बढ़ा देंगे। You see, forgetting is not just an accident or it's not just ignorance. It's a spiritual battle, and that's what I want all of us to understand this morning. प्रिय चीज़ों, मैं चाहता हूँ कि हम जो भूल जाते हैं, हम जो याद नहीं रखते हैं, हम जो भुला देते हैं, वो
सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक या एक मानसिक समस्या नहीं है, वो एक आत्मिक समस्या है। ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं रहता और हम बोलते हैं कि हमारी याददाश्त खराब है, ऐसा नहीं है। सवाल दिक्कत यह है कि हमारा जो आत्मिकता जो है उसमें कोई खोट है, जिसके कारण हम सारी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में याद रखते हैं। And that's why David encourages us forward. And that is what we move to point number 2, that where we must remember, like which is that place where we must remember all that God has done. इसे दाऊद इस बात को समझाते हुए कि हमें क्यों उसके उपकारों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्यों याद रखना है? जिससे कि हम अपने जीवन में उसकी भलाई को अपने जीवन में याद कर पाए, ना कि हम अपने जीवन के नकारात्मक सोचों से अपने जीवन के चाल को चले, अपने सारे कार्य केंद्रित को सब कुछ अपने नकारात्मक सोचों के कारण ना चले। उसी पर आधारित भजनकार अब हमें बोलता है कि क्यों याद रखना है, वो मैंने बता दिया। अब कहाँ याद रखना है, इसको दाऊद हमारे सामने लाता है। So the question that David tries to address is that where does this remembering need to happen? यहाँ पर दाऊद ये सवाल पूछता है कि ये याद रखना जो है वो कहाँ चलना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। And he answers that in verse 1, and he says, and bless the Lord, O my soul, and all my inmost being, or all that is within me, bless his holy name. और यहाँ पर वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। And we see here that David, again as we saw, he's not talking to God first. He's not talking to anybody else. He's talking to himself. He's preaching to his heart. यहाँ पर दाऊद के बाकी भजनों में हम क्या देखते हैं? वो सीधा यहोवा से बात करने लगता है। यहाँ पर वो किससे बात कर रहा है? हैं? हे मेरे मन, क्या ये परमेश्वर का मन है? नहीं, किसके मन से बात कर रहा है दाऊद अपने मन से बात कर रहा है। एक तरीके से अगर बोला जाए, वो अपने मन को लेकर मन से को प्रचार कर रहा है। And if we are to really tackle and understand the real issue or challenge that we face, is that most of us spend too much time listening to ourselves and not enough time talking to ourselves. और समस्या प्रिय चीजों ये है कि हम आज हम लोग आत्मिक विश्वासी होने के बावजूद भी हम अपनी मन की बात को सुनने वाले लोगों में से बन गए हैं, मगर हम लोग कभी भी अपने मन से बात नहीं करते हैं। हम मन की बात को सुनने वाले हैं, मगर मन को रखकर मन से हम बात नहीं करते हैं। There are a lot of young adults here and people who are starting out in their jobs and things like that, or maybe in their college and starting their careers. यहाँ पर ऐसे युवा जन हैं जो अभी काम शुरू करने वाले हैं और जो अपने कार्यरत या किसी नौकरियों को ढूंढकर अपने करियर को शुरू करने वाले हैं। Or there may be some of us who are already into our work life for a long period of time. और हम में से कुछ हैं जिन्होंने काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। And there may be days wherein we are so discouraged, we get up and we start thinking, I'm really behind in life. Everybody seems to be getting ahead of me. I don't think so I'm going anywhere. और कभी-कभी हम लोग सुबह उठते हैं और हमको ऐसे एक ऐसी एहसास हमारे जीवन में आता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ की जितने लोग थे मेरे से कितने आगे विकसित होकर वो कितने मेरे से आगे निकल गए हैं। मेरे साथ के लोग कितने बड़े बड़े लोग बन गए हैं, मगर मुझे देखो, मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ, जहाँ पर था वहीं पर फंसा रह गया हूँ। Oh, if I had gone to this country or if I had gone to this place, I would have been this or I would have been that. फिर आप पुराने जीवन के आपके जीवन में जो बातें घटी हैं उसको दोहराना शुरू करते हैं। अरे ये निर्णय ले लिया होता तो मैं वहां चला गया होता, ये बात मान ली होती तो मैं उस देश चला, उस विदेश जाकर मैं कुछ बड़ा व्यक्ति, कुछ महान व्यक्ति बन जाता। That's their heart talking to them. प्रिय चीजों, ये क्या है? ये हमारा हृदय है जो हमसे बात कर रहा है। वो हमसे हमारा जो हृदय है वो हमसे बात कर रहा है। Oh, there can be a mother who takes care of the kids through and through, and for the longest period of time, sometimes she would get up and start thinking, this is all that I'm doing,
is that all to it? और कभी कभी जो जो जहाँ पर मन हमसे बात करता है उसका दूसरा उदाहरण हम अपनी माँओं में देखते हैं। जब जब जवान माँ जो है अपने बच्चों को वो पालन पोषण करती हैं, पैदा करके पालन पोषण परवरिश करती हैं, वही काम दिन रात उनको करते रहना पड़ता है। उसमें कोई उनको ब्रेक नहीं मिलता है, पूरे समय वही करते हैं। कहीं ना कहीं वो निराशा उनके जीवन में उत्पन्न होता है और वो इस बात को कहने लगते हैं कि ये मेरा जीवन अब यही रह गया है, इसका क्या मतलब है, इस बच्चे को का परवरिश करने में क्या मतलब है। मेरा जीवन जो मैं इतना बड़ा बनने वाली थी या ये करने वाली थी वो सब छोड़कर अब मैं एक बच्चे को का ध्यान देती हूँ। That's her heart talking. प्रिय चीजों, ये हमारा मन है या आपका मन है जो आपसे बात कर रहा है। As we age and as we grow in age, I'm sure there is going to be a time wherein we are going to think, I am forgotten, I am useless, nobody is going to think about me. और जब हम लोग थोड़ा वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक समय तो लोग मुझे पूछते थे, याद करते थे, अब कोई मुझे पर ध्यान नहीं देता है। That's the heart talking. ये आपका मन है जो आपको बोल रहा है कि ये आपको याद दिला रहा है। And we continue to hear these voices and what the heart continues to speak to us without speaking back to the heart. देख रहे हैं आपके हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सारी बातें क्या हैं? हमारा मन हमसे निरंतर बातचीत करता जा रहा है और वो बातचीत हमेशा नकारात्मक रूप में ही होती है कि ऐसा कर लेते, ये हो जाता, तुम और काबिल हो, तुमने ये क्या कर लिया। ये सारी बातें मन हमारे मन को भरता रहता है। But David is bringing you back to your inmost being to do what? To remember. That's the seat of remembrance. और मगर दाऊद जो है इस कहानी को बदलने की कोशिश करता है। दाऊद कहता है जहां पे ये चीजें होती हैं वहां पर तुम्हें क्या करना है? तुम अपने हृदय में तुम परमेश्वर के उपकारों को तुम मत भूलो, वहां पर तुम उसको याद करो। And we see here that he talks back to his soul, he talks back to his heart, bless the Lord, do not forget all his benefits. और यहाँ पर देखिए एक सुंदर प्रचार दाऊद अपने दिल से करता है। वो दिल से बात करते हुए, अपने मन से, अपने हृदय से बात करते हुए कहता है, क्या याद दिलाता है अपने हृदय को? हे मेरे हृदय, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। Last week Ashish quoted this in one of the conversations. It was from Psalm 15 verse 2. He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. That's what we read in Psalm 15:2. और 15वें भजन 15 उसकी दूसरी आयत में लिखा गया है, जो व्यक्ति सच्चाई अपने दिल में रखता नहीं है, दिल में बोलता है, उस व्यक्ति के बारे में 15वें भजन में लिखा गया है। Dear one, that is biblical meditation. प्रिय चीजों, ये है जब हम लोग वचन आधारित मनन के बारे में बात करते हैं। It is not emptying your head and mind and sitting silently or filling yourself with self-motivation quotes that you can do it. Do not hear the voices around. That's not what Bible or David is talking about here. और आज के आधुनिक युग में और पहले भी ऐसा होता था कि मनन के बारे में जब बोलते हैं तो हमारे समय पर यही बोला जाता है कि बैठो और अपने मन को खाली करो, ये जो बुरे सोच को निकालो और ये इनसे बाहर निकलो। मगर दाऊद उसका उल्टा बोलता है। दाऊद बोलता अपने मन में क्या भरो? परमेश्वर के वचन को भरो, उसकी भलाई को याद करो, उसके अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की भलाई से भरो। It is about filling your and my heart with the truth so that it becomes very vivid in our hearts and minds. प्रिय चीजों, कहानी ये है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की सच्चाई से हम अपने दिल को भरें, जिससे कि ये सच्चाई जो है हमारे जीवन में वाकई सच्चाई बनकर स्थापित हो जाए। Think about work, think about relationship. Maybe you had a rough week. और आप अपने काम के बारे में सोचिए, संबंधों के बारे में सोचिए, शायद एक बहुत बुरा हफ्ता निकला होगा।
There might be a lot of work at our workplace, और अगर वापस जाते भी आपके लिए बहुत सारे काम पड़ा होगा जो आपको करना है, and your boss is yelling and shouting, और आपका बॉस जो है आप पे चीख रहा चिल्ला रहा है, and you come back home, your spouse is yelling and shouting, और जब घर आप आ रहे हैं तो आपका जीवन साथी है वो आप पे चीख रहा चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, your spouse doesn't understand you, और आपको लग रहा है कि आपका जीवन साथी आपको समझता नहीं है, or your best friend isn't talking to you, और आपका अच्छा दोस्त आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, and suddenly your heart starts to say, you know what, you are absolutely worthless. और आपका मन जो है उस समय पर आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि अरे तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तुम बहुत ही बेकार किस्म के एक व्यक्ति हो। If you listen to it, your life is going to spiral out of control. प्रिय चीजों, ये भजन हमें वापस याद दिलाता है कि हम अपनी मन की ना सुने। अगर हम अपनी मन की सुनने लगेंगे तो हमारा जीवन नियंत्रण के बाहर हो जाएगा, हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। But the truth that you and me need to preach to ourselves is that God's love is not based on our performance. मगर सच्चाई जो हमें अपने दिल से बतानी है, दिल को बतानी है, वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अपने तरफ से आता है, उस पर आधारित है। It is not based on how good you and me are, it is based on how good He is. ये चीजों हमारे अच्छाई और बुराई के आधार पर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। He crowns me with compassion, He remembers me. वो दया से परिपूर्ण करता है, वो मुझे याद रखता है। And you will suddenly see the weight starts to lift. प्रिय चीजों, जब आप अपने दिल से बात करना शुरू करेंगे, अपने दिल से प्रचार करना शुरू करेंगे, तब आपके जीवन की जो दुखद जो आपको लगता है, जहां पर आप बिल्कुल थक कर हार कर बैठ गए हैं, आपको लगेगा कि वो भार आपके जीवन से हट रहा है। Oh, that's the wear of remembering deep in the soul, in our inmost being. प्रिय चीजों, इसलिए भजनकार कहता है तुम्हें कहाँ याद रखना है, कहाँ याद करना है परमेश्वर को, जहां तुम्हारी जीवन का सबसे अंदरूनी भाग है, जो तुम्हारा हृदय है, वहां पर तुम्हें परमेश्वर के भलाइयों को याद करना है। And this is the discipline that David shows us, that it is not just reading the truth or hearing it, it is pressing it into our soul until it burns in our hearts. प्रिय चीजों, यहाँ पर दाऊद इस सच्चाई को कहता है, सिर्फ पढ़ने, कभी-कभी हम लोग बाइबल पढ़ जाते हैं, सच्चाइयाँ हम देख जाते हैं, मगर उसको दिल में हम उसका प्रचार नहीं करते हैं, उससे हमारा दिल ज्वलित नहीं होता है। And that is what David is calling us to do, is to really reorient ourselves and really understand that where should be our seat of focus and remembrance. और इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, अपने मन से बात करो, मन से प्रचार करो, सुसमाचार को बार बार अपने मन से को रखकर प्रचार करो, जिससे तुम्हारा मन जो है वो बदले, जिससे तुम परमेश्वर की सच्चाई को और करीबी से जान पाओ। We saw why we must remember, we saw where we should remember, and that leads us to what we must remember, because that's exactly what you're going to talk to your heart. आपने देखा कि हम क्यों याद करते हैं, कहाँ याद करते हैं, अपने हृदयों में याद करते हैं। अब हम आखिरी बिंदु देखेंगे, हम क्या याद करते हैं। And David says, forget not all his benefits. यहाँ पर भजनकार कहता है, उसकी भलाइयों को तू भूल मत। And then as you read through, it is just expounding on everything that God has done for you and for me. और यहाँ पर भजनकार इसको बोलकर, दूसरे आयत को बोलकर कि उसके उपकार को ना भूलना, उसके बाद दाऊद क्या करता है, उसके सारे उपकारों को एक सूची के रूप लिखता है और याद करना शुरू करता है। He talks about forgiveness. वो यहाँ पर माफी, क्षमा के बारे में बात करता है। He talks about healing. He talks about redemption. वो यहाँ पर उद्धार और चंगाई के बारे में बात करता है। He talks about love, satisfaction and justice. वो यहाँ पर न्याय, प्रेम के बारे में और संतृप्ति के बारे में बात करता है। And about everything he says, as far as the east is from the west, so far has he removed your transgressions
He has removed our transgressions from us. और वो कहता है कि जितना दूर पूर्व पश्चिम से है उतना दूर परमेश्वर ने तुम्हारे अधर्मों को तुमसे दूर कर दिया है। What is the gist, or what's the summation of all what David mentions? यहाँ पर दाऊद ये जो लिखता है इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या है? Dear ones, that's the gospel. प्रिय अजीजों, ये सुसमाचार है। That's what we must remember, and that is what we are called to preach to our hearts every day, every प्रिय moment. अजीजों, सुसमाचार को याद करना और उस सुसमाचार को अपने हृदय में प्रचार करना वो हमारी बुलाहट है, हम इसको भूले मत। Let's be honest, we say and use these terms very loosely in our lives. और इस बात को हमको मानना ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं ईमानदारी से अगर आप इस बात को मानिए कि ऐसे शब्दों को हम बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। Like God loves me, और हम लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, and we might believe it at some time. और कई बार हम लोग उसमें विश्वास भी करे होंगे। But when the bills are piling up, मगर जब हमारे पास पैसे कम होने लगते हैं और बिल्स पे बिल्स आने लगते हैं, or when the breakup happens in और जब आपका relationship, संबंध जो है जो खरा था वो टूटने को लगता है, when you're not doing great at work, जब आप काम में आपका अच्छा काम समय नहीं चल रहा है, when rejection stings, और जब आपको लोगों ने तिरस्कृत किया है, जब आपको उससे चोट पहुंचता है, God loves me doesn't ring anymore true. आप इस in our बात को hearts. बार बार बोलते रहे होंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मगर जब ऐसे विषम परिस्थितियां आती हैं तो हम बिल्कुल दाएं निकल जाते हैं, हम उस सच्चाई को अपने मन में रखते नहीं हैं, वहां से दूर हम भाग जाते हैं। Oh, that is what this table does to us. प्रिय चीजों, ये मेज हमको हमारे साथ यही करता It is है। not just remembering his benefits, but it is also the cost that he had to give for those benefits to come to us. जब हम इस मेज से भागीदार होते हैं तो हाँ, उसके उपकारों को हम याद जरूर करते हैं, मगर ये मेज हमको ये भी याद दिलाता है कि उस उपकार को जो हमें दिया गया उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। Verse 10 says, he does not treat us as our sins deserve. और 10वीं आयत में वो कहता है उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। I believe that many a times when things are not going well, we have two ways how we think about it. जब हमारे साथ समय ठीक नहीं चल रहा होता तो हमारे पास दो तरीके हैं सोचने के। One, we think, oh, I have done so much for you, God. Why am I going through this? This is not fair. जब बुरा समय आता है तो हम लोग शायद प्रार्थना में हम ये बोलते हैं, परमेश्वर कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है या मैं तुम्हारा विश्वासी हूँ, मगर फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। The other way to look at it would be that I'm okay to suffer, but not this much. At least I would have done something for you to consider this is not fair. और या तो हम दूसरा तरीका बोलेंगे कि परमेश्वर ये तो ठीक है, मैं थोड़ा तो झेल सकता हूँ, मगर तुमने मेरे झेलने के परे मेरे ऊपर मुसीबत डाल दी है। We all have our category of fairness of how we should be dealt with, both from man and from God. और हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने मन में श्रेणियां बना लेते हैं कि किस प्रकार मनुष्य हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार परमेश्वर हमसे व्यवहार करना चाहिए। But what we forget is the enormity of the sin and the cost that it entails, and that is exactly what David mentions in verse 10. He does not treat us as our sins deserve. और इस बात को हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इतने पापी थे, हमारा पाप इतना महान था, उसको हटाकर हमको परमेश्वर ने उपकार को दिया है। और इसी बात को यहाँ पर दाऊद अपने मन को याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? 10वीं आयत में अपने मन को कहता है, उसने हमारे पापों को अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। You know why? क्यों? Because Jesus was treated the way we should have, the way we deserved. प्रिय चीजों, जो हम जिसके लायक थे उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया गया। He was forsaken so that we could be remembered. वो तिरस्कृत हुआ जिसके कारण हम याद दिलाए गए या हमें वापस याद दिलाया गया। And when we start to remember and apply these things into our lives every day, it is going to come with a cost. और अगर हम इन चीज़ों को बार बार याद कर अपने जीवन में लागू करेंगे तो उस याद रखिए हमको भी एक कीमत चुकाना पड़ता So है। if you have a friend who has not been good to you or kind to you and has betrayed your trust,
और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसने आपके साथ गलत किया है या आपके साथ विश्वासघात किया, आपको ऐसा लगता है, So instead of cutting them off, you forgive and you try to restore that relationship. आप उसको माफ करें, आप उस संबंध को वापस शुरू करने के लिए, उसको पारित करने के लिए वापस कोशिश करें। But you are going to pay emotionally the cost. मगर कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो माफी में, वो क्षमा में, वो सारा जो कीमत है वो आपको खुद चुकानी होगी। When a parent absorbs the cost of a child's mistake, जब माता पिता अपने बच्चे की गलती को बच्चों से नहीं लेते हैं, उस गलती की जो कीमत को माता पिता अपने ऊपर ले लेते we हैं will pay the fine, और वो उसका जो दंड है वो देते हैं, we will cover the loss, जितना भी उससे घटी हुई है उसको भी माता पिता अपने ऊपर ले लेते हैं, and we will choose grace over punishment, but that's the cost that it comes with. और उस नुकसान को भी झेलने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को दंड नहीं देते हैं, उन पर अनुग्रह दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर इन सब चीज़ जब माता पिता ने किया तो क्या कर रहे हैं, वो अपने आए ऊपर कीमत को ले रहे हैं, उस कीमत को वो अदा कर रहे हैं। And hence, just coming back and just closing this with this reminder. और इसलिए वापस इसको सारांश कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Dear ones, we are called to remember what matters and what is going to matter eternally. प्रिय चीज़ों, हमें बुलाया इसलिए गया है कि हम उन चीज़ों को याद रखें जो ज़रूरी हैं, सत्य हैं और आज के लिए नहीं, अनंत काल के लिए जो सत्य हैं उनको याद करने के लिए हमें और आपको बुलाया गया है। And we should remember the person of Jesus Christ, and the beauty of who he is should be central to our consciousness. That should captivate our hearts this morning. आज सुबह प्रभु यीशु मसीह और उसका प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस हमारे जीवन में केंद्र बिंदु बन जाना चाहिए। उसकी सुंदरता, उस क्रूस को सराहने का जो मौका जो हमें मिला हुआ है, उस कारण हमारा जीवन पूर्णतः उसके लिए केंद्रित हो जाना चाहिए। Because there is no greater love than the love on that cross. प्रिय चीजों, प्रभु उस क्रूस के प्रेम से और कोई बड़ा महान प्रेम हम और आप नहीं देख सकते। There is no greater sacrifice than the sacrifice उस on the क्रूस के cross. बलिदान से और कोई बड़ा बलिदान हम और आप नहीं देख सकते हैं। There is nothing big in this world that is bigger than Christ Jesus. प्रिय चीजों, ऐसे इस संसार में कुछ भी नहीं जो इस प्रभु यीशु मसीह से महान हो, Because he became the forgotten one on the cross. क्योंकि वो हमारे और आपके लिए एक भुलाया हुआ व्यक्ति बन गया। Verse 16, would you read with me? 16वीं आयत को आप मेरे साथ पढ़िए। The wind blows over it and it is gone, and its place remembers it no more. जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। In sin, that was our destiny. प्रिय चीजों, पाप में हमारा जो भविष्य इस प्रकार होना चाहिए था। That is what we deserve, to be forgotten. हमेशा के लिए भुलाए जाने के लिए हम और आप योग्य थे। To be forsaken eternally. कि हम लोग अनंतकाल रूप से हमें भुला दिया गया हो और हमें तिरस्कृत कर दिया गया हो। But on that cross he cried, my God, why have you forsaken me? मगर उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह रोता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। And we see he always addresses all through the New Testament of God the Father as Father, but it's here that he doesn't call him Father, he calls him God. और हम लोग जब इस चीख को जो प्रभु यीशु मसीह की चीख को देखते हैं, वो पूर्ण नए नियम में अपने जीवन अपने कार्यकाल में परमेश्वर को पिता करके संबोधित करता है। मगर जब वो चीखता है तो वो ये नहीं कहता हे मेरे पिता, वो क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। Because he was forgotten on that cross, we could be remembered. प्रिय जीजों, क्योंकि उस क्रूस पर पिता उसको भुला दिया, जिससे कि हम और आप उस वापस जिससे कि उसके हाथ में आ जाएं, परमेश्वर को हमको याद कर पाए। Oh,
What a beautiful thing as we remember this morning. प्रिय चीजों, जब इस मेज के चारों तरफ हम बैठते हैं, कितनी ही सुंदर एक बात हम और आप याद करते And हैं। more importantly, what he does is that he secures our memory. और वो ये इतना ही नहीं, वो हमारे लिए हमारी याद को बचाए रखता है, उसको संरक्षित रखता है। Because of Jesus, our sins are remembered no more. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे पाप अब कोई याद, परमेश्वर याद नहीं रखता है। Because of Jesus, our names are written in the book of life, never to be erased. हम प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारा नाम उस जीवन की किताब में लिख दिया गया है और वो कभी भी उसको कोई हटा नहीं सकता है। Because of Jesus, we are adopted as his children so that we can cry and call him Abba Father. प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमें लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला है और इस कारण हम यहाँ पर आकर उसको अब्बा पिता करके पुकारते I want हैं। to encourage everyone this morning that as we hear and listen and as we read, let's move beyond the theory. और इसलिए हम लोग, मैं यहाँ पर बैठे सबको इस बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ये सुनने और उसको सिर्फ ध्यान में रखने से ज़्यादा इसको मन में रखना, इस पर पारित करना, इसको पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। Let it be active. और इसको सक्रिय बनाना बहुत ज़रूरी है। It's daily life, my dear ones. और ये हमारे लिए रोज़ का जीवन है। And hence it's not a surprise of how David ends the psalm. He says, "Bless the Lord, O my soul." और इसलिए दाऊद यहाँ पर इस बात को आखिरकार समाप्त करते हुए कहता है कि उसको धन्य कहो, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। Tomorrow morning you're going to wake up. कल सुबह आप उठेंगे, If you and me wake up. अगर हम लोग और आप रात तक हम बस मर ना जाएं तो कल सुबह उठेंगे Your heart will talk. और आपका मन वापस आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। It will whisper fear, और guilt, आप- shame and inadequacy. और आपके मन में वो बात मन जो है आपको याद दिलाएगा कि आप बहुत छोटे हैं, आप काबिल नहीं हैं, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको लोग प्रेम नहीं करते हैं। Don't listen. प्रिय चीज़ों, इस आवाज़ को सुनना बंद करिए। Talk back. अपने मन से बात करना शुरू करिए। Preach Psalm 103 to your hearts. अपने मन को ये भजन प्रचार करिए Remember all his benefits. और ये बात को अपने मन को याद दिलाइए कि हे मेरे मन, यहोवा के हर उपकार को तू याद कर। And let's remember that he was forgotten so that you and me could be remembered forever. प्रिय अजीजों, इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह इस मेज हमको याद दिलाता है कि वो भुला दिया गया जिससे कि हम और आप याद दिलाए गए, वापस परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लाया गया। Oh, the hymn writer says, "How didst thou humble thyself to be taken, led by thy creatures and nailed to the cross, hated of men and of God too forsaken, shunning not darkness, the curse and the loss." May his name be glorified. नाम की महिमा हो।